Good morning, student. Welcome to our channel #query #solution. Today's topic is net present value. Let's see the background. Net present value को NPV भी कहा जाता है. It comes under financial management. Then financial management में आता है investment decision. Investment decision के बाद it further divided into capital budgeting technique. कैपिटल बजटिंग टेक्निक के अंदर टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, उसका एक टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक और NPV. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू is a discounted cash flow method that consider time value of money, that is TVM short form, in evaluating capital expenditure. So net present value क्या है? एक है discounted cash flow method, जैसे हमने बताया time में discounted cash flow technique, और consider करता है time value of money concept to evaluate capital expenditure. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं to understand NPV. एग्जाम्पल है, suppose Mr. X wants to invest, and for that he took a loan of rupees 1 lakh from a bank at interest rate 8% per annum, and Mr. X is expecting 10% per annum from the investment proposal. Then he approaches to the fund manager for the investment purpose. Fund manager proposes two investment proposals, proposal A and second is proposal B. He also stated estimated cash flows over the period of 5 years. From proposal A, the return will be 10,000 in first year, 20,000 in second, 30,000 in third year, 40,000 in fourth, and 50,000 in fifth year. That is ascending order. And from project B, first year cash flow will be 50, second will be 40,000, then 30, then 20, then 10,000. That is descending order. So now Mr. X want to know the annual return which he is getting from the proposals. First, accumulate total of all the cash flows from project B and then from project B. He will get 1,50,000 from both the proposals. अब उसमें से इसको सिलेक्ट करना है. सो अगर हम देखें टोटल कैश फ्लोज दोनों के सेम है तो प्रपोजल कौन सा एक्सेप्ट होना चाहिए? दोनों ही एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब चाहे ए हो या बी हो. अगर हम टोटल से देखें, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैश फ्लो, तो दोनों ही एक्सेप्टेड है. सेकेंड थिंग, बट मिस्टर एक्स want to accept or reject on the basis of percentage per annum. Now he used ARR, that is annual rate of return technique. On the basis of ARR, what he get is 30% from A and 30% from B. How he gets 30%? What he did is average cash flow divided by initial investment. If we solve this equation, what will we get is 1,50,000 divided by 5, we get the average per year, and the initial investment is 1 lakh rupees. If we solve this equation, we get the 30%. तो अब उसने जब सॉल्व करा तो he gets कि 30% मेरी रिटर्न है और मुझे जो देना है बैंक को वो 8% देना है. तो ARR is more than borrowing cost, that is 30% is more than 8%. So he can accept 30% is more than 8%. So he can accept any of the project or proposal. Now our concept comes in, that is NPV. NPV क्या कहता है? NPV wants to discount all the cash flows with the desired rate of return. And the desired rate of return is what he is expecting. He is expecting 10% per annum return. So NPV निकालने के लिए एक टेबल बनाएंगे. टेबल से पहले हम देखते हैं NPV की फॉर्मूला. NPV equals to sum of n period t starts from 1
cash flow across the time and 1 plus R minus cash flow. So अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है NPV equals to cash flow first year discount with the discount rate for period 1 cash flow 2 1 plus R whole power 2 plus CF3 R whole power 3 CF4 1 plus R 4 plus CF 1 plus R 5 पीरियड कितना है 5 साल का माइनस कैश फ्लो एट इनिशियल दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इक्वेशन को ही देखें तो इन इक्वेशन में कैसे लिखा जाएगा, इक्वेशन में ऐसे लिखा जाएगा NPV इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर में हम अब निकाल रहे हैं प्रपोजल ए की NPV, क्या निकलेगा कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में हमें कितना आ रहा था 10,000 1 प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है हमारा 10%, तो 10% आपने यहाँ लिखा तो आपको पता है ये 10% कैसे लिखते हैं। 10% को हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10%, तो बोथ आर सेम। प्लस सेकेंड ईयर में हमारा कैश फ्लो है 20,000 1 प्लस R दैट इज R को हमने रिप्लेस करना है विद दी 10% 2 पावर 2 लगा के 30,000 1 प्लस 3 प्लस 40,000 1 प्लस 4 प्लस 50,000 1 प्लस 5 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो है हमारा 1 लाख रुपीस। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय विद PVIF प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। किसका फैक्टर निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर क्या है 10% का फर्स्ट ईयर के लिए प्लस 20,000 PVIF 10% 2 साल के लिए प्लस 30,000 PVIF 10% 3, ऐसे हम 5 सालों के लिए करेंगे क्योंकि हमारा पीरियड जो है 5 साल का है। तो 10% रेट फोर्थ पीरियड के लिए, फिर 50,000 मल्टीप्लाई बाय PVIF प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% फॉर 50 ईयर, देन माइनस कर देंगे हम इसको 1 लाख रुपीज से। दिस विल बी डिनोटेड बाय दिस फिगर, जो आउटफ्लो है ये हमारा ये अमाउंट है। अब इसको टेबल फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, टेबल फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, बोथ आर सेम। अगर आप इक्वेशन से सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा, और टेबल फॉर्म से भी ईयर्स कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर दैट इज 10% फॉर 5 ईयर्स के लिए, फिर आपका प्रेजेंट वैल्यू, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। अब नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे हमारे 5 साल, तो हमने 1 to 5 ईयर्स कर दिया। हमने फर्स्ट जो हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिस दिन लगा उसको हमने 0 कंसिडर। फर्स्ट डे पे हमारा कैश आउटफ्लो हुआ था 1 लाख रुपए का। देन हमारे पास सीरीज ऑफ कैश फ्लोज आई थी ओवर द पीरियड 5 ईयर्स, तो हमने उसको यहाँ पर लिख लिया। ओके, इसलिए कैश फ्लो बोला गया है क्योंकि इसमें आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो कवर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको क्लियर करना है तो यू कैन गो एंड वॉच आवर वीडियो टू नो व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और अगर हम इसको निकालें, हम यहाँ बताएं तो फर्स्ट जो 0 ईयर पे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमेशा 1 होगा। देन 1 ईयर हमारा 10% है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का अगर हम देखेंगे तो हमारा जो PVIF आएगा वो आएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 751, फोर्थ ईयर इज 683, फिफ्थ ईयर इज 621। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस, यस 1 2 3 4 एंड 5। PVIF हमने कैलकुलेट करा था 10% नंबर ऑफ ईयर्स के लिए n के लिए, तो फर्स्ट में था 909, सेकंड में था 0.826, थर्ड में था 0.751, फोर्थ में था 0.683, फिफ्थ में था 0.621। इसको कैसे कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेशन क्या है, ये फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस R अपॉन में T, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। तो कैसे निकाला, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस दिस डिवाइड बाय दिस, तो पावर दिस। सेकेंड में कैसे निकलेगा, अगर हम इसको ऐसे करें तो हमारा सेकेंड ईयर का निकलेगा PVIF, थर्ड ईयर का ऐसे, फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का ऐसे। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे,
तो हमें यह आंसर निकल जाएगा PVIF। तो PVIF किसी का भी निकाल सकते हो। इन केस अगर आपको PVIF निकालना है एट द रेट ऑफ 15%, अगर PVIF का इंटरेस्ट रेट है 15% और नंबर ऑफ ईयर्स है 5 ईयर्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे, हम 10 को रिप्लेस करके 15 कर देंगे, तो हमें निकल जाएगा PVIF 15% के हिसाब से। जो भी हमारा डिजायर्ड होगा अमाउंट हम उसको रिप्लेस कर देंगे इस अमाउंट से। ये हमारा जो होगा इंटरेस्ट आर जो होगा हमारा, ये होगा डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और इसको जो आप क्वेश्चन में मिलेगा उसे कहते हैं डिस्काउंट रेट। इसको डिस्काउंट रेट या वैक से डिनोट करा जाएगा। वैक होता है आपका वैक, therefore WACC is equals to weighted average cost of capital। तो ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर हम इसी वीडियो में आपको सब समझाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उसके लिए अलग वीडियोस हैं, क्योंकि वो खुद एक कॉन्सेप्ट। अगर हम इसको सॉल्व करें दैट इज पीवी क्या होगा, पीवी जो निकलता है वो निकलता है कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय PVIF। मतलब अगर हम कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करें इससे तो हमारा आंसर आएगा P प्रेजेंट वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया हमारा -1 लाख। इसको सॉल्व करा हमने, निकाला फिर आंसर ये आएगा 9090। फिर इसकी वैल्यू आएगी 16520। फिर थर्ड ईयर की जो वैल्यू है वो 530। फोर्थ ईयर की वैल्यू जो है 27320 और फिफ्थ ईयर की है 31 इसका, और इसका टोटल क्या होगा 106510। दैट इज इसको बोलेंगे, ये डिनोट करता है हमारा दीज आर द सम ऑफ कैश फ्लो ओवर द पीरियड दैट इज T1 प्लस R होल पावर में T। तो ये जो है बेसिकली ये अमाउंट है। ओके, दिस इज द अमाउंट। अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है, व्हाट डज इट मीन्स, मतलब प्रेजेंट वैल्यू है क्या। इसका कहने का मतलब ये है, इफ समवन इन्वेस्ट 9090 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10%, आफ्टर 1 ईयर ही विल गेट ₹10,000 इन रिटर्न। मतलब अगर आप 9090 को अगर आप इन्वेस्ट करते हो 1 साल के लिए तो वैल्यू विल बी 10,000। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो वो आपको समझ आ गया कि बेसिकली इस वैल्यू को क्या कहा गया है। ऐसी सेम 16520, बट इसमें पीरियड जो हो जाएगा वो 2 इयर्स हो जाएगा और एट द रेट ऑफ 10%। और यहाँ पर जो बेसिकली एजम्पशन है, अमाउंट जो है कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है हमारे। कंपाउंडेड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट की है। इसको समझने के लिए आपको बेसिकली TVM का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आते हैं हम अपने प्रपोजल बी पार्ट पे। सेम प्रपोजल बी सॉल्व करेंगे। ईयर्स, कैश फ्लो, PVIF, डिजायर रेट, प्रेजेंट वैल्यू। 2 3 1 लाख लगाया, 50,000 आया। सेकेंड ईयर 40,000 आया। थर्ड ईयर 30,000 आया। फोर्थ ईयर 20, फिर 10। सेम प्रेजेंट वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी इंटरेस्ट फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी गेट, -1 लाख, 45,450, 33,040, 22,530, 13,660 and 6,210, and the total is 1,20,890. So this is the present value which we will get from the proposal B. If we compare proposal A and proposal B, net present value उसमें हमने डिडक्ट नहीं करा है 1 लाख रुपीज। ये सिर्फ हमारा है सम ऑफ ऑल दी कैश फ्लोज ओवर अक्रॉस 5 पीरियड विच इज डिस्काउंटेड फॉर 5 इयर्स। पर हमें एनपीवी कैसे निकालना होगा, एनपीवी का फॉर्मूला हमने बताया था। तो एनपीवी इक्वल्स टू सम ऑफ माइनस कैश फ्लो इनिशियल। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा एनपीवी, फर्स्ट में आया हमारा 6,510 एंड बी में आया हमारा 20,890। तो ये हमारा एनपीवी निकल के आया। अब एनपीवी क्या बोलता है, द डिसीजन क्राइटेरिया। अगर हम डिसीजन क्राइटेरिया लगाने से पहले आपसे पूछें कि वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट, प्रपोजल ए और प्रपोजल बी, तो आप सबका होगा, क्योंकि आपने ये देखा कि प्रपोजल ए
और प्रपोजल बी में सेम इन्वेस्टमेंट है, सेम कैश इनफ्लोज है हमारे, ठीक है। पर अगर हम एनपीवी लगाया, जब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करा गया, तो हमने देखा बी इज मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज बी अर्न्स अस ऑलमोस्ट 14,000 मोर देन दी प्रपोजल ए। तो अगर मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट की बात करूं, तो हम प्रपोजल ए तो रिजेक्ट कर देंगे, प्रपोजल बी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंड है सिर्फ 1 लाख का। इस प्रपोजल्स को कहा जाता है जहां पर एक का सिलेक्शन दूसरे का रिजेक्शन होता है, इसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स और proposals. Acceptance of one would leads to rejection of other. इसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो डिसीजन क्राइटेरिया बोलते हैं एनपीवी। एनपीवी कहता है फिर एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 तो एक्सेप्ट कर लो। इफ एनपीवी इज लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव हुआ तो रिजेक्ट कर लो, ठीक है। ये पॉजिटिव के बारे में बोल रहा है, नेगेटिव के बारे में बोल रहा है, पर हमारे यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव फिगर्स हैं। इफ बोथ द एनपीवीज आर ग्रेटर देन 0 देन हायर एनपीवी प्रपोजल और प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड और एक्सेप्टेड, ठीक है। हम दोनों प्रोजेक्ट में देखा, तो हमने अब पहले हम डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा हम प्रोजेक्ट चूज करें, क्योंकि हमारे दोनों के कैश इनफ्लो सेम थे। अगर हम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक लगाए तो उसमें भी हमारे पास सेम ही रिटर्न मिल रहा था, पर जब हमने एनपीवी लगाया तो देन वी गेट टू नो कि प्रपोजल बी इज मोर प्रॉफिटेबल। चलो ये तो मेरे को समझ आ गया कि मैंने 10% से ज्यादा कमाया, पर मैंने कमाया कितना। तो देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज IRR, इसे कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR is a technique which tells us that the present value of expected inflow equals to the cash flows जो हमारी इनिशियल में गई। IRR बताता है equals to discount rate at which, जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इक्वल हो जाती हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। अगर मैं IRR बताऊं तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का, तो हमारा IRR निकलता है, प्रोजेक्ट ए का निकलता है अप्रोक्सीमेटली 12.01% एंड बी का निकलता है 20.27% अप्रोक्सीमेटली। तो अगर IRR से भी देखें, यू कैन ऑल्सो रिजेक्ट और एक्सेप्ट द प्रपोजल। आई थिंक सबका आंसर बी होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। क्यों निकालती है कंपनी ये देखने निकालती है, ठीक है। ऊपर से हमें पता चलता है कि कौन सा प्रपोजल लेना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट दोज प्रपोजल्स विच आर हायर देन दी 0, जहां पर हमें प्रॉफिट होता है ना कि लॉस होता है, या हमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ कोई नहीं, हमें प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर जहां पर हमें लॉस होगा, मतलब लेस देन 0 होगा, तो हम उसको कैसे लेंगे। अब हम IRR निकालते क्यों, IRR का निकालने का और ये टेक्निक करने का, हम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट कर रहे हैं उसका रीजन क्या है। सो हम एक क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स टू इवेल्युएट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि हम उसको क्यों यूज करते हैं। एज वी ऑल नो, ईच रुपी ऑफ capital raised bears some cost, commonly known as cost of capital. So it is necessary that each rupee is to be invested in a very prudent manner. अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो हर एक रुपी के लिए हम कॉस्ट बियर कर रहे थे 8% पर एनम की, ठीक है। तो अगर 8% पर एनम हमें पे करना है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है हमें इससे ज्यादा अर्न करना पड़ेगा। तो दैट इज रेजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल इज 8% इन अबव एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन होता है, व्हाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज सो क्रूशियल। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों क्रूशियल है। आंसर, इट इन्वॉल्व्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड वन इज इररिवर्सिबल, क्योंकि एक बार डिसीजन ले लिया आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरा, कॉम्प्लेक्स डिसीजन है लेना कि वेदर वी एक्सेप्ट दी प्रपोजल और नॉट, ये क्राइटेरिया है जिसमें। और दूसरी चीज है, इट एंश्योर्स आर एग्जिस्टेंस इन लॉन्ग रन। दीज आर द रीजन व्हिच मेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्रूशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैपिटल बजटिंग टेक्निक किस किस को हेल्प करती है। इट कैन हेल्प न्यूली incorporated firms or the existing
कंपनीज दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, फर्म्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर, एग्जिस्टिंग में मतलब एक्सपेंशन करनी है, देन ही कैन यूज मॉडर्नाइजेशन करनी है, डाइवर्सिफाई करनी है, मतलब ही वांट्स टू एंटर ए न्यू मार्केट और want to introduce a new product. Newly incorporated organization में selection करने के लिए whether he acceptance or rejection. So anyone can use capital budgeting technique. एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, that is what is discount rate? Discount rate, or you can say it as a desired rate of return, that is चाहत, आप कितना चाहते हो. On an investment, it is the rate of return the firm would have earned by investing the same fund in the best available alternative. तो अब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. यू कैन यूज दिस टेक्निक वे यू वांट टू इन्वेस्ट. ओके, इस टेक्निक लगाने के बाद मिस्टर एक्स को आंसर मिल गया कि ही शुड इन्वेस्ट इन प्रपोजल बी, नॉट इन प्रपोजल ए. इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट इन कमेंट बॉक्स. सो आज की वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, like it, share it, subscribe it, and press notification bell for the more upcoming videos. Thank you and goodbye.